Hello students, today we are going to study about multiplication of algebraic expressions. Chapter number 9, Algebraic Expression and Identities, class 8 Mathematics. Now there are number of situations in which we need to multiply algebraic expressions. बहुत सारी ऐसी सिचुएशंस होती है जब हम algebraic expressions का multiply करते हैं. और कौन कौन सी है? Let's find area of rectangle where length and breadth expression is given to us. Suppose length is given to us 2x plus 3. It is in the form of expression L length, and breadth is 5x. Now we need to multiply area. Let's find area. What is area? Length into breadth. That means we have to multiply 2x plus 3 into 5x. So how to multiply such things? हम कैसे multiply करेंगे? That we are going to learn today. आज ही हम यही सीखने वाले हैं कि how to multiply algebraic expressions. What are the different cases through which we can multiply? We can find volume also. So length, breadth and height is also given to us, and height is 7x square. So how to find volume? L into B into H. How to multiply three monomials, binomials, trinomials? सभी कैसे multiply करते हैं यही हम आज सीखने वाले हैं. तो let's start करते हैं. तो वॉल्यूम निकालना है तो सी वी हैव टू मल्टीप्लाई लाइक दिस. ये वॉल्यूम हो गया. नाउ हाउ टू मल्टीप्लाई फर्दर, दैट वी आर गोइंग टू लर्न नाउ. First of all, first case is multiplying a monomial by monomial. We know what is monomial. A monomial which contains one term, जिसमें एक ही टर्म होती है वो मोनोमियल कहलाता है. तो एक एग्जांपल लेते हैं कि हाउ टू मल्टीप्लाई टू मोनोमियल्स, मोनोमियल विथ मोनोमियल. सो लेट्स टेक वन मोनोमियल 3x स्क्वायर वाई जेड क्यूब. ये एक मोनोमियल ले लिया हमने. एंड लेट्स टेक अनदर मोनोमियल 5x वाई स्क्वायर जेड स्क्वायर. Suppose we need to multiply these two. Terms are always separated by plus and minus. तो ये मोनोमियल ही है, इसके अंदर कोई बीच में प्लस और माइनस नहीं है. सो दिस आर मोनोमियल, दिस टू आर मोनोमियल्स. सो हाउ टू मल्टीप्लाई टू मोनोमियल्स? तो मल्टीप्लाई कैसे करेंगे? फर्स्ट ऑफ ऑल नंबर विथ नंबर. इफ नंबर इज देयर तो 3 into 5. देन कम्स see x variable is there, here also there, so 2, and here what? X की power 1. and now y, what is y here? Y की power 1. और यहाँ कितना है y? Y की power 2. और यहाँ देखो ये कितना है? z क्यूब. और यहाँ कितना है? z स्क्वायर. now we can multiply further. 3 5 are 15. Now a raised to the power m into a raised to power n, a raised to the power m plus n. अगर बेस सेम है तो पावर 8 हो जाती है. तो 2 plus 3 कितना हुआ? x की पावर 3. एंड हियर नो पावर मीन्स 1 पावर. 1 plus 2 y की पावर हो गई 3. और 3 plus 2 z की पावर हो गई 5. So you see we have multiplied monomial with monomial. So we can multiply so many monomials with monomials के साथ multiply कर सकते हैं easily. So this is the way. अगर उसका कोई टर्म नहीं है, x नहीं है, तो वो विल रिमेन एज इट इज. सपोज करो यहाँ पे a भी होता, अगर यहाँ a लगा देते तो यहाँ पर a आ जाता सिंपल, बिकॉज देयर इज नो टर्म ऑफ a हियर. यहाँ पे कोई a का कोफिशिएंट 5 का a जो है नहीं है, जो वेरिएबल a है यहाँ मिसिंग है. अगर यहाँ होता तो यहाँ a लगा देते सिंपल. तो अभी नहीं है तो हटा देते. Now multiplying 3 or more monomials. Now there are 3 more or more monomials. So how to multiply? So एग्जाम्पल से क्लियर करते हैं. 3y स्क्वायर एक ले लेते हैं, एक मोनोमियल ये हो गया. 5aby एक ही ले लेते हैं मोनोमियल, एक को ले लेते हैं. 2xy a स्क्वायर b क्यूब. सपोज ये 3 मोनोमियल्स हो गए. अब इन तीनों का मल्टीप्लाई करना है. तो सिंपल रूल इज सेम. फर्स्ट ऑफ ऑल नंबर्स, अगर नंबर्स जितने भी हैं सबका मल्टीप्लाई. तो 3 into 5 into 2. Now see y is there, so y is there, so multiply with y all. Y square is here, here y is there, and here also y is there. So then next comes y square clear हो गया यहाँ पे. फिर अब क्या बचा? a. तो a वेरिएबल ले लेते हैं. a यहाँ पे कितना है? a स्क्वायर है. यहाँ a नहीं है, नो प्रॉब्लम, हमको सारे a देखने. फिर नेक्स्ट इज b. तो b is here, b is not here, b is here, b cube, b into b cube. So anything left? x. अब देखिए x बच रहा है सिंपल एक x, यहाँ कहीं x नहीं है तो सिंपल x एक लगा देते हैं.
Now multiply further, 3 5 are 15, 15 2 are 30 and add all the powers. बेस सेम होते, पावर सब ऐड हो जाती हैं. 2 + 1 3, 3 + 1 4, तो y की पावर 4 आ गई. और यहाँ कितनी पावर है? 1, तो 2 + 1 कितना हो गई? a की पावर 3. यहाँ कितनी पावर है? 1, तो 3 + 1 हो गई b की पावर 4. और ये x की पावर 1 एज इट इज. आप चाहे तो असेंडिंग डिसेंडिंग में लिख दो तो अच्छा लगेगा दिखने में. x लिखते हैं पहले, फिर आएगा y, फिर आएगा a³ और फिर आएगा b की पावर 4. ये थोड़ा सिस्टमेटिक हमने लिख लिया. सो नाउ नेक्स्ट वन इज मल्टीप्लाइंग मोनोमियल बाय पोलिनोमियल. सो हाउ टू मल्टीप्लाई मोनोमियल विथ ए पोलिनोमियल. सो फार अभी हमने क्या देखा था? सिर्फ मोनोमियल से मोनोमियल देखा और मोनोमियल से 2 मोर मोनोमियल देखे. अब मोनोमियल से पोलिनोमियल करते हैं. तो उसमें सबसे पहले जो फर्स्ट नंबर पे आएगा वो हम करते हैं. ये फर्स्ट नंबर पे हमारा है मल्टीप्लाइंग मोनोमियल बाय बाइनोमियल. पोलिनोमियल में बाइनोमियल हो जाएगा, मोनोमियल तो हो ही चुका है, हमने कर चुके हैं. तो बाइनोमियल, ट्राइनोमियल, क्वाड्रिनोमियल और चलते जाएंगे. तो लेट्स सी मोनोमियल विद बाइनोमियल. सपोज लेट अस टेक वन एग्जांपल ऑफ मोनोमियल. तो मोनोमियल ले लेते हैं 5xy, एक मोनोमियल ले लिया. एक बाइनोमियल ले लेते हैं और 2x + 3y, एक अपने बाइनोमियल ले लिया. टर्म्स आर ऑलवेज सेपरेटेड बाय प्लस या माइनस साइन से सेपरेट होते हैं. तो बाइनोमियल में कितना होना चाहिए? तो प्लस होना चाहिए, माइनस होना चाहिए. तो हमने एक प्लस ले लिया है. अब हमें मोनोमियल का बाइनोमियल में मल्टीप्लाई करना है. तो 5xy इंटू 2x + 3y. तो हाउ टू मल्टीप्लाई? तो मल्टीप्लाई कैसे करेंगे? डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी लगा देंगे. 5xy में 2x का मल्टीप्लाई और 5xy में 3y का. a इंटू बी प्लस सी, जैसे हमने प्रॉपर्टी पढ़ी क्लास 6-7 में. a इंटू बी प्लस सी, a इंटू बी प्लस a इंटू सी, डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी. तो यहाँ भी हमें डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी लगा देना है. 5xy इंटू 2x, 5xy में 2x का मल्टीप्लाई और 5xy में 3y का मल्टीप्लाई. और उसके बाद तो ये दो मोनोमियल और ये दो मोनोमियल की प्रॉपर्टी लग जाएगी. तो 5 2 = 10, तो यहाँ लिख देते हैं 5 2 = 10 और x मिलके कितना हुआ? x² हो गया. और y एज इट इज है और प्लस चल रहा है साथ में. 5 3 = 15, 5 3 15 हो गया. x का एक ही टर्म है तो x हो गया. और y कितने हैं? 1 और 1, y की पावर कितने हो गई? ये 2 हो गई. तो ये आ गया हमारा आंसर. अब इनको ऐड नहीं कर सकते हैं क्योंकि ये लाइक टर्म्स नहीं है. x² y है और xy² है. डोंट ऐड देम, इट इज द ओनली आंसर. नाउ लेट्स मल्टीप्लाई मोनोमियल विथ ट्राइनोमियल. हाउ टू मल्टीप्लाई मोनोमियल एंड ट्राइनोमियल? सो लेट्स टेक वन मोनोमियल 3a एंड लेट्स टेक वन ट्राइनोमियल a + b + b - c. ये ट्राइनोमियल ले लिया हमने, एक मोनोमियल ले लिया. सो कैसे मल्टीप्लाई करेंगे? सेम प्रॉपर्टी वी हैव टू यूज. 3a इंटू a + b - c. वापस से डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी वी हैव टू यूज. 3a इंटू a, 3a इंटू b एंड 3a इंटू -c. सो मल्टीप्लाई 3a इंटू a, देन 3a इंटू b एंड 3a इंटू -c. और फर्दर मल्टीप्लाई कर देते हैं. 3a 3a², 3ab एज इट इज, और ये प्लस इंटू माइनस माइनस और 3ac. सारे अनलाइक टर्म्स है तो डोंट ऐड देम. सो दिस इज द आंसर. नाउ द नेक्स्ट टॉपिक इज मल्टीप्लाइंग ए पोलिनोमियल बाय पोलिनोमियल. पोलिनोमियल से पोलिनोमियल का मल्टीप्लाई करना है. सो इसमें हमको फर्स्ट देखना है मल्टीप्लाइंग ए बाइनोमियल विद बाइनोमियल एंड मल्टीप्लाइंग ए बाइनोमियल बाय ट्राइनोमियल. तो हम दोनों केस कर देते हैं. ये हम सेकेंड केस ये हो जाएगा. यहाँ ले आते हैं ये. सो देयर आर 2 केसेस. इसके 2 केस पढ़ने हमको. पोलिनोमियल से पोलिनोमियल का, इसके अंदर बाइनोमियल टू बाइनोमियल एंड बाइनोमियल विद ट्राइनोमियल. तो और ट्राइनोमियल विद ट्राइनोमियल भी हो सकते हैं. तो बहुत सारे हो सकते हैं. अगर एक पढ़ लेंगे तो बाकी सब भी सेम ही रहते हैं. सो बाइनोमियल एंड बाइनोमियल. सो टेक एग्जाम्पल 2x - 3y. ये एक बाइनोमियल ले लिया. एंड टेक वन मोर बाइनोमियल, और एक बाइनोमियल और ले लेते हैं 3a - 4b. एक और बाइनोमियल प्लस लगा देते हैं एक में. ये एक बाइनोमियल है, ये दूसरा बाइनोमियल. तो हाउ टू मल्टीप्लाई बाइनोमियल विद बाइनोमियल्स का मल्टीप्लाई कैसे करेंगे? सो फर्स्ट मल्टीप्लाई साइन इनटू 3a + 4b. नाउ यू टू टेक एनी वन फर्स्ट टर्म. इसका फर्स्ट टर्म लीजिए. इस फर्स्ट टर्म का इस पूरे में मल्टीप्लाई करना है. मीन्स 2x इंटू 3a + 4b. And this -3y, now take -3y and this multiply -3y with 3a + 4b.
दैट मीन्स हमने 2x का मल्टीप्लाई इस पूरे में भी 3a प्लस 4b में किया और माइनस 3y का मल्टीप्लाई भी 3a प्लस 4b में। अब ये आपका क्या हो गया, मोनोमियल और बाइनोमियल, मोनोमियल और बाइनोमियल। तो फर्दर मल्टीप्लाई 2 3 जा 6 x इंटू ए ax, 2 4 जा 8 bx, माइनस 3 इंटू माइनस 3 माइनस 9 ay, और माइनस इंटू प्लस माइनस 4 3 जा 12 और b इंटू वाई बी वाई। ये हो गया, और कोई लाइक टर्म्स नहीं है तो ये ऐसे ही रहेगा। नाउ लेट्स सी द लास्ट वन, मल्टीप्लाइंग बाइनोमियल विद ट्राइनोमियल। तो हाउ टू मल्टीप्लाई बाइनोमियल से ट्राइनोमियल का मल्टीप्लाई। तो लेट्स टेक वन बाइनोमियल। बाइनोमियल लेते हैं ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, एक बाइनोमियल हमने ये ले लिया। एक ट्राइनोमियल ले लेते हैं, लेट्स टेक ट्राइनोमियल ए प्लस बी प्लस सी, एक ट्राइनोमियल हमने ये ले लिया ए प्लस बी प्लस सी। सो हाउ टू मल्टीप्लाई दिस टू, तो ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर इंटू साइन एंड देन ए प्लस बी प्लस सी। तो फर्स्ट टेक द फर्स्ट टर्म ले लेते हैं और उसका हम मल्टीप्लाई करते हैं ए प्लस बी प्लस सी में। सिमिलरली माइनस बी स्क्वायर ले लेते हैं, देन वी हैव टू मल्टीप्लाई विथ ए प्लस बी प्लस सी। तो फर्स्ट टर्म का हमने इस पूरे से मल्टीप्लाई कर दिया। फर्स्ट वी हैव मल्टीप्लाइड विद दिस ए स्क्वायर विथ ए प्लस बी प्लस सी एंड बी स्क्वायर विथ ए प्लस बी प्लस सी। नाउ वी नो फर्दर, हमें तो मालूम ही है किस तरह से मल्टीप्लाई करते हैं। ए स्क्वायर इंटू ए स्क्वायर इंटू ए की पावर 3, ये 1 पावर है, 2 प्लस 1 3, और ए स्क्वायर भी एज इट इज विल रिमेन चेंज, विल नॉट चेंज बिकॉज दोनों डिफरेंट है। ए स्क्वायर इंटू सी, तो ए स्क्वायर सी, और इसका मल्टीप्लाई माइनस ए पे लिख देते हैं ए बी स्क्वायर, माइनस इंटू प्लस माइनस, और ये 1 पावर है तो 2 प्लस 1 3 माइनस बी क्यूब हो गया, माइनस इंटू प्लस ये माइनस हो गया, और क्या है बी स्क्वायर और सी हो गया। कोई लाइक टर्म्स नहीं है, सो इट विल रिमेन एज इट इज। और इसी तरह से हम ट्राइनोमियल से ट्राइनोमियल का भी कर सकते हैं। ट्राइनोमियल विद ट्राइनोमियल, ट्राइनोमियल विद ट्राइनोमियल, ऐसे ही हम बहुत सारे कर सकते हैं। अगर हमको ये समझ में आ गया तो देन वी कैन डू एनी। सो लेट्स टेक वन ट्राइनोमियल ले लेते हैं, एक्स प्लस वाई माइनस जेड, एक ट्राइनोमियल लिया, और एक दूसरा ट्राइनोमियल ले लेते हैं एम प्लस एन प्लस पी। सपोज हमें ये दोनों का मल्टीप्लाई करना है, दिस इज ट्राइनोमियल, दिस इज ट्राइनोमियल। सो सिंपली फर्स्ट टर्म लेना है और इस पूरे का मल्टीप्लाई कर देना है एम प्लस एन प्लस पी का। इसी तरह से सेकेंड टर्म लेना है एंड मल्टीप्लाई विथ एम प्लस एन प्लस पी। सिमिलरली जेड थर्ड टर्म लेना है एंड देन मल्टीप्लाई एम प्लस एन प्लस पी। नाउ मल्टीप्लाई फर्दर, इसके बाद आपको मालूम ही एम इंटू एक्स एम एक्स, एन एक्स पी एक्स एंड एम वाई एन वाई एंड पी वाई एंड माइनस एम जेड माइनस एन जेड एंड माइनस पी जेड। सो दिस इज द आंसर। और इसके बाद कुछ हो नहीं सकता, सो आंसर आ गया, कोई लाइक टर्म्स है नहीं, तो दिस इज द आंसर। सो आई होप यू अंडरस्टूड हाउ टू मल्टीप्लाई, where why we are multiplying, and how we in different cases we are multiplying with monomial or monomial with binomial and trinomial with trinomial. So I hope you understood multiplication of polynomials. So thank you so much for watching the video.